again a very good day to Standard 10th, and I hope you have remembered that we have started with our chapter number 17, that is Indian Challenges, Poverty and Unemployment, okay, in which we have already completed the poverty section, the definition, types, reasons and how we can eradicate poverty, okay. After that, we have also studied about the people living below poverty line and what are the measures being undertook by the government in order to eradicate rural poverty and how it will be effective in eradication of the whole poverty from the country. Okay, so now basically we have started with the next topic. See, there is one chapter, but as we have known and I have said that there will be poverty, there will be unemployment, and then there will be world labor planning or world labor market, okay. So in which we have already started the second topic, that is unemployment. In the last section we have done what do you mean by unemployment. So now simply unemployment means any person who is under the age group of 18 years to 60 years, okay, is physically and mentally stable and is able to work and perform in a market at a said or the wages which are being decided by the government, but still and is also qualified enough and have all the working ability and knowledge which is essential for that job, but yet fails to find a job or work, will be known as unemployed person. ठीक है, उसको याद करने के लिए हमने एक हिंदी में छोटा सा कोडवर्ड भी बनाया था, इच्छा भी है, उम्र भी है, पर काम नहीं है, मीन्स यू आर विलिंग टू वर्क, ठीक है, और योर एज इज देयर एंड यू हैव ऑल द ड्यू क्वालिफिकेशंस टू वर्क, बट स्टिल यू फेल टू फाइंड अ वर्क, देन यू विल बी अनएम्प्लॉयड पर्सन. इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड नहीं होगा, तो वुमेन्स, हैंडीकैप पीपल एंड ओल्ड एज पीपल एंड चिल्ड्रंस जो हु आर बिलो द एज ऑफ 16 years, ओके. सो ऑल दिस पीपल जो इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं, यू नो, यूथ बहुत सारे, बच्चे बहुत सारे हैं, जो ओल्ड एज पीपल है वो बहुत सारे हैं, विमेंस बहुत सारी है, ठीक है. अगर उनमें से किसी को भी बोला जाए कि क्या ये अनएम्प्लॉयड है, तो वो अनएम्प्लॉयड में काउंट नहीं होंगे. और विमेन से भी अब क्या कौन सा हम बोल सकते हैं, ड्यू टू चेंजेस, दोज हु आर हाउसवाइफ्स, ओके, हु आर डूइंग द हाउसवाइफ जॉब एंड यू कैन नॉट टेल देम अनएम्प्लॉयड, ठीक है. उसके बाद हमें करना था टाइप्स ऑफ unemployment, okay. There will be 6 to 7 types, there are lots of, but in our course it will be like this. तो अगर तुम लोगों ने चैप्टर 10 देखा हो जो था हमारा एग्रीकल्चर, हमने उसमें बहुत ही अच्छे से टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर किए थे. कौन कौन से थे, लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ दैट चैप्टर आल्सो फॉर 1 second. Simply subsistence farming, okay, dry farming, wet farming, zoom farming which is also called as shifting of farming, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है. उन सभी के लिए हमने एक चार्ट बनाया था. उस चार्ट में हमने बहुत अच्छे से, जैसे कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन प्रिपेयर की है, उसी तरीके से हमने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन और उसके टाइप्स की डेफिनेशन की थी, ठीक है. एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में हमने क्या किया था, तो इफ़ यू हैव स्टिल रिमेंबर्ड दोज थिंग्स, एक बार रिफर कर लेना उस वीडियो में जाकर. मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ वरना ये टॉपिक मिस हो जाएगा, बट फटाफट हमारे जो 6 टाइप्स है उसका क्विक रिविजन कर लेते हैं. सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स पोते उगाड़ीने पोते खावानो, ओके. इन दैट वी हैव स्टडीड that a farmer who are not able to acquire a good amount of land and who is poor can only bear their own family cost and can only grow very small amount of croppation. तो खुद उगाना और खुद के फैमिली को सस्टेन करना, दैट विल बी इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ड्राई फार्मिंग मीन्स वी ऑल नो, ड्राई फार्मिंग मीन्स ड्राई फार्मिंग, the where the irrigation facilities are inadequate, hence one crop can be only undertaken at a time. Wet farming means where there is an excessive rainfall or all the adequate irrigation facilities are available, hence more than one crop at a time can be undertaken, that will be wet farming. उसके बाद हमने किया था जूम फार्मिंग और शिफ्टिंग ऑफ फार्मिंग. का मतलब क्या होता है, जंगल को जला के किया गया फार्मिंग. अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विल बी रिसाइडिंग एट सम प्लेस, वो वहाँ का जो जंगल का एरिया होगा उसे बर्न आउट कर देते हैं, वहाँ पे क्रॉप्स उगाते हैं 1-2 साल तक, जब तक कि वो लैंड फर्टाइल होता है उसमें क्रॉप्स अच्छे से उगते हैं
उसको बेचते हैं एंड हेंस दे डू इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, आफ्टर दैट देयर वाज प्लांटेशन एग्रीकल्चर. तो हमने उसके लिए क्या शॉर्ट फॉर्म बनाया था? प्यार से पाल पोस के किया गया फार्मिंग. मतलब क्या होता है कि द ट्रीज, द फ्रूट्स, द ड्राई फ्रूट्स, द कोकोआ, कॉफ़ी एंड टी एंड ऑरेंज एंड ऑल द क्रॉप्स जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, जिसके ऊपर क्लाइमेटिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, उन सभी को बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेशन के अंदर, शेड के अंदर, रूफ के अंदर सर्टन डिग्री ऑफ क्लाइमेट और सर्टन डिग्री ऑफ सेल्सियस प्रोवाइड कर कर उन्हें ध्यान से रखा जाता है, उगाया जाता है, और उतने ही ध्यान से उसका लॉजिस्टिक्स, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, अनलेस इट कम्स टू द अल्टीमेट सर्विस मार्केट. और लास्ट हमारा था इंटेंसिव फार्मिंग. मतलब क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स को लेना. मीन्स there is in certain portion there will be maize and certain portion there will be bajri. ओके, एक के साथ बहुत सारे फार्म, बहुत सारे क्रॉप्स, या फिर एक क्रॉप उगाया हुआ है और कुछ जगह में पल्सेस उगाए हुए हैं, कुछ जगह में पल्सेस उगाए हुए हैं, उसके साथ फ्रूट्स उगाए हुए हैं. या तो कभी कभी ये भी बोल सकते हो कि पॉल्यूट्री फार्मिंग, एक फार्मर जो है वो क्रॉप्स भी उगाता है, उसके साथ साथ पॉल्यूट्री फार्मिंग भी करता है. हॉर्स रेडिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं जो एग्रो बेस्ड में आती है और एक से ज़्यादा चीज़ें जब एक साथ की जाती है उसे कहा जाता है इंटेंसिव फार्मिंग. आई होप यू नो दिस 6 पॉइंट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं चैप्टर 10 में, तो जाकर पढ़ना देखना. ये हमारा क्विक रिवीजन है. तो कैन यू इमेजिन तुम्हारा 4 मार्क्स का बड़ा सा आंसर सिर्फ 4 मिनट भी नहीं लगेंगे तुमको लास्ट में मगअप करने में. ठीक है, स्टैंडर्ड 10 आज जो डेट हुई है, डेट इज it's 4. ओके, 4th है, टुडे इज 4th. एंड लास्ट में जब मैंने तुमसे ये सारी बातें की थी कि तुम लोग वो जाके करना, बिकॉज आई गॉट टू नो कि तुम लोग नहीं कर रहे हो या तुम्हारे कुछ अपलोड भी नहीं हुए हैं, तो उस दिन आई थिंक इट वाज 28 और 27 अराउंड. ठीक है, एक वीक पहले की वो बात है. और क्योंकि मैं उस वीडियो में डेट नहीं बोली थी, सिर्फ तुमको बताया था कि तुम करो करो करो. तो आज 4th ऑफ अगस्त, 4th मतलब 4th ऑफ अगस्त हो चुकी है जब मैं ये शूट कर रही हूँ. आई डोंट नो तुम्हें ये वीडियो कब मिलेगा, तो जब भी मिले तुमको अब डेमो मिल चुका है कि तुम अगर अच्छे से चैप्टर करोगे तो तुम्हारा इतने बड़े बड़े जो आंसर है वो 4 मिनट से या 5 मिनट से भी कम में याद हो जाएंगे. और इस चैप्टर के पहले मैंने ये जो पूरा रिवीजन एक चैप्टर का इसीलिए करवाया क्योंकि इसमें भी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है, इसमें भी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आने वाले हैं, उसको भी हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट में करने वाले हैं. तो इस बार जब भी पढ़ो, आधा घंटा 1 घंटे का पूरा टॉपिक होने वाला है, वो अच्छे से याद करके पढ़ना. तो तुमको लास्ट में जब मैं क्लास में हम मिलेंगे या मैं बोलूँगी तब फटाफट सबको स्ट्राइक होगा. उसके अलावा हमने एग्रीकल्चर में 3 और चीज़ें की थी. फार्मिंग में टाइप्स ऑफ फार्मिंग में कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, मिक्स फार्मिंग होता है, तो वो वाला जो आंसर था वो भी हम इतना ही क्विकली कर लेंगे. उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी हम शॉर्ट में फटाफट कर लेंगे जब मैं एक रिवीजन लेक्चर लूँगी. बट इस बार तुमको पता चले कि इतना अच्छे से हो जाएगा अगर ये पढ़ोगे तो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं? ठीक है, साइक्लिकल होता है, टेक्नोलॉजिकल होता है, सीजनल होता है. जनरली उसको टाइप्स में क्यों डिवाइड किया जाता है? तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो है वो परमानेंटली 24/7 अनएम्प्लॉयड ही रहे. कभी कभी ये भी होता है कि कोई इंसान है वो सपोज कि सीजनल बिजनेस कर रहा है. ठीक है, तो हो सकता है कि जब उस बिजनेस की सीजन हो तब तो उसका बिजनेस बहुत अच्छे से चले, पर बाकी के टाइम में वो बिना कमाए बैठेगा. तो उस सीजन में या वो कुछ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेगा या उस पीरियड के दौरान उस इंसान को अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा. सिमिलरली साइक्लिकल होता है, स्ट्रक्चरल होता है और बहुत सारे और भी होते हैं. ठीक है, हम स्लोली एक के बाद एक करते जाते हैं एंड यू विल गेट टू नो. और लास्ट में जैसे कि तुमको इतना इजीली वो 6 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर याद रह गए, पूरे एसएस के अंदर हर एक आंसर्स ज़्यादातर जिनके चांसेस है पूछने के 60% ऑफ कैरिकुलम विल बी ऑन मी. डोंट वरी, भले ये कोरोना है जो भी है फिर भी तुम 60 मार्क्स तो अपने हिसाब से ला ही पाओगे. ठीक है, अगर तुमने ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी की होगी तो. मगिंग अप की चिंता मेरे सब्जेक्ट में मत करना, बट मेक श्योर कि यू वॉच दिस ऑल. Economy. Seasonal unemployment.
और ये सिर्फ स्टैंडर्ड 10 के लिए था। 9th में हमने जो किया डजंट मैटर्स एट ऑल। ओके, सो दिस इज फॉर स्टैंडर्ड 10, इट इज अ सिस्टमैटिक वे, तो प्लीज डू इट। Unemployment. Due to lack of irrigation facilities, irregularity in rainfall, and lack of alternative employment, farmers have to remain unemployed. Types of unemployment. Following are the types of unemployment in Indian economy. Seasonal unemployment. Due to lack of irrigation facilities, irregularity in rainfall, and lack of alternative employment, farmers have to remain unemployed for 3 to 5 months in India. This is called seasonal unemployment. Frictional unemployment. See, as it is being said, seasonal unemployment क्या होता है कि due to irregular rainfall or due to lack of proper irrigation facilities, there are certain period of time in a year where farmers have to be unemployed. ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे सीजनल बिजनेस होते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर ही सीजनल ऐसा नहीं है। कोई बंदा है वो काइट फ्लाइंग, जो फेस्टिवल्स की चीज़ें बेचते हैं, यू नो, काइट फ्लाइंग के लिए काइट बेचना, दिवाली के लिए पटाखे बेचना, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जिनका कभी कभी ट्रेंड होता है या कभी कभी उसका एक सीज़न आता है। तो उस जो स्कल्पचर्स आर्टिस्ट है, उनके लिए भी जो मूर्ति होती है दुर्गा पूजा के वक्त बहुत सारी बिकती है, गणपति के वक्त बहुत सारी बिकती है, बट रेदर दैन दैट इट इज़ वेरी मच इन लॉस। टूरिज्म बिजनेस है, टूरिज्म भी बहुत बड़ा सीजनल बिजनेस है। जब भी वेकेशन पीरियड होता है तो हर एक टूरिस्ट प्लेसेस है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हिल स्टेशन हो या कोई भी एरिया हो, वो भी अच्छे से अच्छी कमाई कर लेते हैं। बट ड्यूरिंग द ऑफ सीजन दे पीपल जस्ट स्टे देयर विदाउट एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। होटल मैनेजमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। हालांकि इंडिया अब इतना आगे आ चुका है कि होटल मैनेजमेंट तो 24/7 इतना गिरा हुआ रहता है ड्यू टू बिजनेस मीटिंग्स एंड you know, this conferences and all, but still they do face some seasonal kind of things. So this all comes under seasonal. Second is frictional. What it is? When new technology is introduced in place of old technology, laborers remain unemployed for some time. This is called frictional unemployment. Structural unemployment. Indian economy is backward and orthodox. Social backwardness, traditional orthodoxy, customs, illiteracy, and lack of structural facilities are responsible for structural unemployment. Disguised unemployment. Sometimes more. So दो चीज़ें हम कर लेते हैं, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बोथ आर इक्वल अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन एनी काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एनी काइंड ऑफ मशीनरी which actually uses there is a pure reduction in manpower, okay, it will be victims of frictional unemployment. How? Example बताना। अगर किसी को कंप्यूटर आता है, ठीक है, तो और अब तो बहुत लोगों को, क्योंकि इट इज़ अ बेसिक नीड, ये डिराइव हो चुका है, बट स्टिल जिनको आता है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट कंप्यूटर सबको आता है, पर किसी को उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स है जैसे कि टेली है, एक्सेल है, एनीथिंग, पावर पॉइंट है, उसका यूज़ करना बेटर तरीके से आता है रादर देन समबडी हु डजंट नो हाउ टू यूज़ देम। तो किसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? ऑफकोर्स द वन हु नोज, ठीक है। किसी को सपोज कि कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी एजुकेशनल फील्ड हो या कमर्शियल फील्ड हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत है। टेली कम्युनिकेशन में जाओगे तो किसका हिंदी बहुत पावरफुल है, गुजराती पावरफुल है, इंग्लिश पावरफुल है, उस तरीके से तुमको वो कॉलर में बात करनी पड़ेगी। तो जिस भी बंदे का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, लैंग्वेज पे कमांड अच्छा होगा, उसको ही पहले मिलेगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिसकी वजह से मैन पावर का जो यूज़ था वो तो ऑलरेडी कम हो गया, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह चुके हैं। और डे टू डे चेंजेस इन टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन जो है वो जो लोग नहीं कर पाते, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी साबित होती है। तो दैट विल बी नोन एज फ्रिक्शनल और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हमने किया ये सॉरी डिस्गाइज है, इससे पहले हमने किया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो ड्यू टू पुअर स्ट्रक्चर being in India, there is no economic basis that if a person is this much educated, एक बनाया हुआ है पर वो क्राइटेरिया में सब कुछ फॉलो होता है क्या? नहीं। तो उन सब चीज़ों की वजह से जो मिसमैनेजमेंट क्रिएट होता है और लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन की वजह से देयर इज़ अ वेरी इनएडिक्वेट एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो।
and if there are present opportunities, people are unaware about it, or the ministry is actually not providing our people a due opportunity. Okay, उन सब चीज़ों की वजह से जो फॉर्म होता है that will be structural unemployment. उसके बाद हम करते हैं disguised unemployment. ओके, हम पढ़ना बाकी है. लेट मी टेल यू पर क्या होता है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये हमने पहले भी शायद एक आधा चैप्टर में किया था कि व्हेन देयर इज मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पीपल बीइंग इन अ सिमिलर बिजनेस, so there is no productivity being visible productivity, or it might be a productivity कि किसी और को, पर visible productivity जो होती है वो नहीं हो पाती, या फिर इकोनॉमिक या मॉनिटरी गेन है उसमें कोई ज़्यादा फर्क या बिल्कुल भी फर्क नहीं आता, उससे हम क्या कहेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. लेट मी टेल यू इन हिंदी क्या होता है विथ एन एग्जाम्पल. कि सपोज कि फार्मर का हमने लास्ट में एग्जाम्पल लिया था, शायद हमने पहले किसी चैप्टर में ये पक्का किया हुआ है कि लेट अस से कि 5 लोग हैं, वो एक एग्रीकल्चरल बिजनेस में है. हाँ, हमने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में ही किया था, यस, चैप्टर नंबर 10 एग्रीकल्चर में ही हमने शायद किया था कि 5 लोग हैं, वो ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जुड़े हुए हैं, और उनको लेट अस से वो लोग 100 kgs ऑफ वीट, फॉर एन एग्जांपल 100 kgs ऑफ वीट उनके एक सीज़न में आते हैं. ठीक है, सभी लोग मिलके मेहनत करते हैं, दे प्लाउ इट एंड देन सीजन में पानी डालना एंड सब कुछ करना, एंड देन दे गेट द क्रॉप्स ऑफ 100 kg. वो सभी मेहनत को फिर उसको मार्केट तक पहुंचाना, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाना, अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, पैसे कलेक्ट करना, और समझो कि उसको उस 100 kg वीट में से 1 लाख रुपीज़ का फ़ायदा होता है. एग्जाम्पल, प्योर एग्जाम्पल. ओके, अब कोई लड़का था, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, घर का 6th लड़का था, 6ठा मैन, और उसको भी बताया जाता है कि नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा तो घर का बिजनेस है, लेट अस से कि सब कुछ बनाया हुआ है, तो तू एक काम कर. तो उससे वो हाथ बढ़ा, ठीक है, हमने तो ये एग्रीकल्चर का लिया है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जनरली, तो वो आता है. ठीक है, वो आएगा तो वो क्या करेगा, जो जितना लैंड एरिया था उसी में क्रॉप्स उगाना है, वो वापस आएगा. शायद हो सकता है कि कोई 4 घंटे काम करता था, अब उसको 2 ही घंटे काम करना पड़ता है, क्योंकि एक और मैन पावर का एडिशन हो गया. अब उन्होंने वापस कितने क्रॉप्स उगाए, 100 kg, मतलब उसमें से कितने मिलने वाले थे, 100 kg प्रोडक्शन मिलने वाला था. उस सीज़न में भी उनको 100 kg प्रोडक्शन मिला. उस सीज़न में भी वो बाहर अल्टीमेट सर्विसेबल मार्केट में गए और उनको 1 करोड़ का फ़ायदा हुआ, 10 करोड़ का फ़ायदा हुआ, 1 लाख हमने जो भी लिया था ये अमाउंट है कि 1 लाख लिया था, लेट अस से 10 करोड़ का फ़ायदा हुआ. उसमें 10 का हुआ था, अभी भी 10 का हुआ, ऐसा रखो. तो उसमें क्या कोई फ़र्क पड़ा, नहीं. मीन्स 1 लाख तभी भी हुआ था, 1 लाख अभी भी हुआ. ठीक है, तो क्या उस बंदे की एक जन के एक्स्ट्रा आने से कोई प्रोडक्शन वैल्यू में या अल्टीमेट इकोनॉमिक बेनिफिट में कुछ फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ. तो क्या वो बंदा एम्प्लॉयड कहलाएगा, क्या वो फैमिली बिजनेस के अंदर हाथ बढ़ा रहा है, उसके पास काम है, कहला सकता है कि वो काम कर रहा है? नहीं, क्योंकि उसके एक बंदे के एडिशन से कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है, नहीं हो रहा है. यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, मार्जिनल यूटिलिटी का. आई डोंट नो अगर तुम लोग ने मैथ साइंस में या कहीं पे भी इस वर्ड को पढ़ा है, बट इको में ज़रूर पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर. कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एडिशनल बेनिफिट बीइंग ऑब्जर्व्ड और बीइंग अरोज्ड बाय 1 एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तुम कुछ, और ये भी हो सकता है कि उससे सब ने मेहनत की, तो इस बार क्रॉप्स काफ़ी अच्छे हो गए और 100 kg की जगह 110 kg वीट जो थे वो उग गए. ठीक है, और 110 kg जो वीट उग गए, उन वीट्स को अल्टीमेट कंज्यूमर मार्केट में डालने के बाद उनको 1 लाख की जगह 1,10,000 का फ़ायदा हो गया, राइट. तो दैट विल बी एन एडिशन. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी तब काम आएगी, तो उस बंदे ने कुछ काम किया तो प्रोडक्टिविटी दिखी. पर क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं होता है. तो दैट विल बी नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. More than required number of workers are involved in an occupation. Even if a few laborers are removed from work, no decrease is recorded in total production. So these extra laborers are said to be unemployed in a disguised way. Industrial unemployment. In the industrial field, if anyone has to remain unemployed for short-term or long-term due to changes taking place in the industrial sector, such a situation is called industrial unemployment. Educated unemployment.
If a person has obtained at least secondary education or degree and is unemployed, he is called educated unemployed. Proportion. सी नाउ दिस इज अ वेरी लास्ट टू जो थे वो यही थे, तुम लोग ने किया ठीक है। कि था इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस कभी कभी मार्केट अच्छा होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स का कहा जा रहा था सिंस 2019 इट वॉज बीइंग फाउंड कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। तो लेबरर्स थे क्या, इंजीनियर्स या जो भी लोग उस सेक्टर से जुड़े हुए थे, उन सभी को या तो ये था कि फोरकास्ट हुआ था कि उन लोगों को इस जो भी डाउनफॉल है उसका सामना करना पड़े, ठीक है। तो फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम और फॉर इट माइट बी शॉर्टर पीरियड और इट माइट बी लॉन्गर पीरियड, ठीक है। उस वक्त उनको अनएम्प्लॉयड रहना पड़े या उनको एडिक्वेट जो भी रिटर्न था वो ना मिले, ठीक है। तो दैट विल बी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर हम बोल सकते हैं कि कभी कभी स्ट्राइक हो जाती है इंडस्ट्रीज़ में, लेबरर्स की स्ट्राइक हो जाती है, मैनेजमेंट में कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, मार्केट के अंदर ट्रेंड बदल जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में अलग अलग जो है चेंजेस हो सकते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट में कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल ट्रेंड या एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर्स बढ़ सकते हैं, सब्सटीट्यूट की अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है। तो इन सभी वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है कुछ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, आइदर लॉन्गर आइदर शॉर्टर, लोगों को अनएम्प्लॉयड रहना पड़े, ठीक है। या परमानेंटली भी छुट्टी दे दी जा सकती है। कोरोना के वक्त ही हमने देखा कितना कुछ हुआ, बहुत सारे जॉब्स थे। इट बीइंग सेड दैट मोर देन 13 करोड़ पीपल हैव बीन अनएम्प्लॉयड इन दिस डेज एंड ऑल, ठीक है। तो वो सब कुछ विल बी पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एज वेल एज सीजन, ये कॉमन बेसिस है, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट किया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो आज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि किसी भी इंसान के पास एक बताई गई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज डिग्री है या कोई भी रिक्वायरमेंट जो एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए होती है वो उसके पास है, ठीक है। क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, सब कुछ है, एज है, पर फिर भी उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो उसे क्या कहा जाएगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर कैरिंग ऑन प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मतलब कि कितने लोग के सामने कितना अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर रहा है। उसके बाद अगेन हमारा पॉवर्टी की तरह कौन सा आएगा, रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउ टू एराडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आएगा, तुम इसको क्वेश्चन आंसर्स की तरह से ही समझते जाना, जैसा ही कि हमने उसमें किया था पॉवर्टी में, हमने 5 क्वेश्चन आंसर्स की तरीके से चैप्टर को समझा था, उसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में चैप्टर को समझते जाना कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। सेकंड क्वेश्चन हमने किया टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अभी हम थर्ड करने जा रहे हैं। Question of unemployment in India. There is difference in state-wise condition of unemployment in India. Because of indifference of employment exchange in registering the details of people interested in getting the job, it is difficult to take out exact or approximate figure. Still, on the basis of figures of Labour and Employment Ministry of India and National Sample Survey (NSS), we get an idea about comprehensiveness of unemployment. According to census counting of 2011, 116 million people were in search of employment. See what is being said. कि due to huge population prevailing in India, it is nearly not possible to find an unemployment or the ratio of unemployment or approx amount of people who will be unemployed. But still, with a due statistical data and some R&D, NSS is able to find certain thing that how much number of people are actually in search of job, because in our definition of unemployment only हमसे ये कहा जाता है कि people who are willing to do work, ठीक है, जिनकी इच्छा है कि हमें कुछ काम करना है और उन्हें काम नहीं मिल रहा तो ही वो अनएम्प्लॉयड है। क्योंकि इतने सारे पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनके पास डिग्री क्वालिफिकेशन है, एज है, स्किल्स है, पर उनको इच्छा ही नहीं है करने की, तो फिर उसको हम कैसे काउंट करें अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो
अनएम्प्लॉयड में। तो ठीक है, एनएसएस ने क्या किया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल और हाउ मच अमाउंट ऑफ पीपल आर एक्चुअली इन सर्च ऑफ जॉब, उसके ऊपर से हम निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज बीइंग सेड, 116 मिलियन पीपल जो थे वर इन सर्च ऑफ जॉब, जिनमें से 32 मिलियन पीपल जो थे वो अनएजुकेटेड थे और रेस्ट ऑफ 84 मिलियन जो पीपल थे वो एजुकेटेड थे। ओके, so this was the measurable quantity for the 32 million people were uneducated, unemployed, and 84 million were educated, unemployed. Approximately 4.70 crore people of 15 to 24 age group were. उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली किस चीज की निकाली गई कि किस एज ग्रुप के पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयड है और कितने, तो 4.7 करोड़, मतलब नियरली इतने सारे लोग जो थे वो 15 से 24 साल की एज में फॉल करते थे और उनको काम नहीं मिल रहा था। Were unemployed. According to the Survey of Labour Bureau 2013-14, rate of unemployment in India was observed to be 5.4%, and in Gujarat, per 1,000 people, 12 persons, 1.2%, were unemployed. See, this is really is very small, but it is very good कि 1,000 है, ठीक है, जनरली 1,000 के अंदर 12, मतलब 1,000 में से सिर्फ 12 लोग ऐसे थे कि जिसके पास काम नहीं था, विच अमाउंट्स टू ओनली 1.2% ऑफ रेशियो। ये 13-14 की बात थी, अब बढ़ भी गया होगा या कम भी हो गया होगा, ठीक है, और कोरोना की वजह से तो देयर विल बी ह्यूज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयड पर्सन अनडाउटेडली, बट हेंस इट इज बीन सेड कि बहुत सारे जो स्टेट से वो बोल रहे थे, बट यू इफ़ यू नो माइग्रेंट्स यहाँ पे थे, तो गुजरात में जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, सिमिलरली महाराष्ट्र मुंबई में है और बैंगलोर और हैदराबाद, जो टॉप 7 या 8 सिटीज़ तुम गूगल करोगे तो आएगा, तो इसमें हमारा भी एक स्टेट है। In 2009-10, per 1,000 people, 34 persons, 3.4%, were unemployed in urban area in India. While in rural area, 16 people, 1.6%, were unemployed. Ratio of educated unemployed was more in urban area. Rate of educated unemployment was more in urban area. Rate of unemployment in women was 7.7% in 2013. In India, more unemployment has been witnessed in states like Sikkim. ठीक है, अब तक जो सारा था वो तुमको रेशियो बताया गया था, 7.7% ऑफ women's were in so and so year like 2013 were unemployed, this much amount of men, this much amount of total public were unemployed, out of in 2009-10 out of 1,000, 34 people in rural and 16 people in 16 people in rural and 34 people in urban area were found unemployed। ठीक है, तो ये सारा जो है वो तुमको 1 मार्क, हाफ मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर जब भी तुम पूरा एक क्वेश्चन लिखोगे, जनरली 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में होगा, उसके अंदर तुम्हें ये डेटा लिखना है, बट देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस आई विल मेक यू डू दैट, तो उसके भी डोंट वरी, जिसको इन्फॉर्मेशन ग्रैब इट अप। और कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्जर्व किया गया वो भी है। Sikkim, Kerala, West Bengal, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jammu Kashmir, Tripura. While ratio of unemployment in Himachal Pradesh, Karnataka, Haryana, Chandigarh and Gujarat has remained low. Condition of employment in Gujarat is good and noteworthy. According to an estimation, 15% highly educated people are youth. 66% youth of the world who are youth of 35 years of age live in India. If India wants to become superpower on the basis of youth, it will have to change unpleasant form of unemployment. Main reasons responsible for increasing unemployment in India are increasing population, theoretical knowledge only, lack of practical knowledge. Very much important topic and very much noteworthy topic for the current situation or for the practical approach in life also, कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा यूथ है, ठीक है, उसमें भी हाईली एजुकेटेड लोगों के अंदर जो आता है वो जनरली यूथ आता है। तो ये कहा गया है कि अगर इंडिया को अपने
पावर्स को डेवलप करना हो, अपनी इकोनॉमी को बढ़ानी हो, तो ये जो भी प्रिवेलिंग क्राइटेरिया है एम्प्लॉयमेंट के लिए या प्रिवेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में है, उन्हें बढ़ाना होगा, उन्हें इम्प्रूव करना होगा। और हमारा सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है कि हमारे पास थियोरेटिकल नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और हमारे जो भी रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट है उसका ये भी रीज़न कि पॉपुलेशन, ठीक है। अब एक घर में 4-4 5-5 बच्चे होते हैं, उसमें सब एजुकेशन में नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सभी रीजंस को भी चेंज करना पड़ेगा और गवर्नमेंट हैव टू इंश्योर दैट फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट को कैसे स्टेप बाय स्टेप जाता है। और अभी ही तुमको पता होगा कि 1 वीक पहले ही हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बदल रहे हैं। तो फाइनली आफ्टर 34-35 ईयर्स समथिंग इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टडी वेल।